हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री जो है ऑन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट चैप्टर। यानी देखा जाए तो हम यहाँ कक्षा 11वीं का इतिहास करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक बात पे, हर एक टॉपिक के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर चीज़ का एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the chapter here on the empire across the 3 continents, there is a most important question arrive here. This is the next question here, important. How was the economical scenario of the Roman Empire? You know that is the most important question. How was the economical scenario of the Roman Empire? The Roman economies was underdeveloped and underachieved. As a substance, agriculture, urban centers that consume more than they are produced in the term of trade and industry. Low status, artisan and slowly developing techniques and the lack of economical rationality. You know that is important. There are low status of artisans, slowly developing technology and the lack of economical rationality here. And some cities were now for the particular industries or commercially activities. And the scale of building in a urban area indicate a significant construction industry. Their area indicate a significant construction industry. Papyrus preserved a complex accounting method that suggests elements of the economical nationalism, and the empire was highly monetized. This is important. Though there is a mean of communication and transport were limited in their antiquity, their transportation in the 1st and 2nd centuries expanded greatly, and trade routes is a connected regional economics. This is important. The economical dynamism is often up one of the avenues of social mobility. And in the Roman Empire, social advancement was thus not dependent solely on their birth. Patron is a good luck or even extraordinary ability. There is extraordinary ability. Third, the aristocratic value permeated a traditional ethics of societies, a strong tendency to avoid the bureaucracies in the indicating by their wealth requirement for the sensory rank. The third, there is a aristocratic value permeated to the traditional realities of society and a strong tendency toward to the plutocracies in the indicated by their wealth requirement for the sensory rank. Prestige could be obtained in through the investing one as wealth in way that the advertise it is appreciated here. A grand country estate or 2 townhouses, a durable luxury item such as a jewelers, as a silver, wares, public
entertainment and Ferraris momentous and for their family member or co-workers and the religious dedication such as the ultras. That's important. And girls as a corporations provided support for individual to be succeed through the networking and sharing sound business or practice and the willingness to be work. It's an important point here. यह चैप्टर जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोमन साम्राज्य का आर्थिक परिदृश्य कैसा है? रोमन साम्राज्य का आर्थिक परिदृश्य कैसा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक के बारे में भी हमारा समक्ष क्वेश्चन आया है, क्योंकि आर्थिक भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कोई भी समय काल के अंतर्गत। कहते हैं रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित और अविकसित थी। देखिए, रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित थी और विकसित भी थी। तो यहाँ पर दोनों बात को लेके चला गया है कि रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित थी, यानी इतने काफ़ी अच्छा विकास अविकसित नहीं थी और नहीं अच्छा विकसित थी। जैसे निर्वाह कृषि शहरी केंद्र जो व्यापार और उद्योग के मामले में उत्पादन से अधिक उपयोग करते थे, यानी जितना उत्पादन नहीं होता था उससे कहीं अधिक उपभोग करते थे, इसलिए रोमन अर्थव्यवस्था जो थे अविकसित थी। और कम स्थिति वाले कारीगर धीरे धीरे विकसित हो रही थी और तकनीकी और आर्थिक जो है तरसंगता की कमी थी, यानी इस समय देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तकनीकी विकास बहुत ही खस्ता हालत में था और आर्थिक तर्कसंगता भी बहुत कमी थी। यानी रोमन साम्राज्य की आर्थिक परिदृश्यता के बारे में बात करें तो बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही जो है लाचार थी। कुछ शहर विशेष उद्योग या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। कुछ जो है शहर उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बेशक लिए जाने जाते थे, लेकिन उस तरह का विकास नहीं मिला जो हम दूसरे क्षेत्रों में देखें। शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण का पैमाना एक महत्वपूर्ण निर्माण उद्योग का संकेत देता है कि शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण तो हमें देखने को मिला है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग जो है इस समय की जाती थी। पिपरी ने जटिल लेखांकन विधियों को संरक्षित भी किया जो आर्थिक तर्कवाद के तत्व का सुझाव देते हैं और साम्राज्यवाद का अधिक जो है मुद्रितकृत भी किया गया था। यानी पिपरी काफ़ी महत्वपूर्ण लेखन कला थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ की सारी बातें उनको जो है पूरी तरह से जो है समझाते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में संचार और परिवहन के साधन सीमित थे और पहली और दूसरी शताब्दी में परिवहन का बहुत विस्तार हुआ और व्यापार मार्ग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि इस समय संचार और परिवहन के साधन सीमित थे और पहली और दूसरी शताब्दी में परिवहन बहुत विस्तार हुआ और व्यापार मार्ग भी काफ़ी प्रशस्त हुआ। आर्थिक गतिशीलता ने रोमन साम्राज्य में सामाजिक गतिशीलता का एक रास्ता खोल दिया और इस प्रकार सामाजिक उन्नति केवल जन्म, संरक्षण, सौभाग्य तथा असाधारण क्षमता पर नहीं निर्भर थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक गतिशीलता ने रोमन साम्राज्य में सामाजिक गतिशीलता का रास्ता खोला। अब जो यहाँ पर जन्म, संरक्षण, सौभाग्य या असाधारण क्षमता पर निर्भर नहीं थी, ये आगे अपने आप को विकसित कर सकते थे। यद्यपि कुलीन मूल्य में पारंपरिक अभिजात समाज में प्रवेश किया, यानी कुलीन मूल्य में ने जो है पारंपरिक अभिजात समाज में प्रवेश किया, लेकिन जनगणना रैंक के लिए धन की आवश्यकताओं की जो है धनीकरण तंत्र की और मजबूत प्रवृत्ति का संकेत भी मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठा को किसी के धन के उचित रूप से विज्ञापित तरीके से निवेश करके प्राप्त किया जा सकता था, यानी प्रतिष्ठा को धन का जो है निवेश करके जो है प्राप्त किया जा सकता था। कहते भव्य देशी संपदा या शहर के घर, टिकाऊ विलासता की वस्तु जैसे गहने और चांदी के बर्तन, सार्वजनिक मनोरंजन, परिवार सदस्य या सहकर्मियों के लिए अतिशिष्ट स्मारक और वेदीय जैसे धार्मिक समर्पण था। यानी देखा जाए तो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि भव्य देशी संपदा, शहर के घर, टिकाऊ विलासता की वस्तु जैसे गहने, चांदी के बर्तन, सार्वजनिक मनोरंजन, परिवार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय था। और गिल्ड और सिनेमाओं में नेटवर्किंग अच्छी व्यावसायिक प्रथाओं को साझा करने और काम करने की इच्छा के माध्यम से व्यक्तियों को सफल होने के लिए सहायता प्रदान की जाती थी। तो इस समय देखा जाए तो हर चीज़ जो है सिस्टमैटिक और सुचारू रूप से करने का प्रावधान था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी एग्जाम व्यू से रखता है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाठी सेंटर की मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना त्रिपाठी सेंटर आगे जाएगा और आपके लिए और भी बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जनरल सी बात है, सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा और अगले वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।